Friends, today's NRI Samai program from Los Angeles brought to you commercial free by listeners like you. Your generous donations make possible for us to stay commercial free, and today's show is pre-recorded. If you have a question for the guest, please send an email to nrisamai@gmail.com. We will follow up with the guest and find the answer for you. Thank you for your support. Hello friends, welcome back to NRI Samai. Today is July 21st, 2013, Sunday. And wherever you are around the world, a very warm good morning, good afternoon, good evening. I am Srikanth from Los Angeles, and with me Navneet Shukla from Boston. So we both today will be dealing with the topic, the acid attack survivors and victims, and how their lives have shaped ever since those heinous crimes that those people have committed on them. So for long these victims lived in dark despair, but today these few of these acid attack victims or survivors moved on from being a victim to survivors, and they eventually became the face of a very fierce campaign against acid attacks. And Supreme Court has given a ruling recently saying that the government would regulate, will have to regulate the sale of acid. So it's a very good welcome move right now, but just to analyze a little bit on what's going on in our country and also around our countries. We have Bangladesh, Afghanistan, Pakistan as our neighbors, and how does the same act of acts or prevention of such heinous acts against women work in other countries? It's sometimes ironical. In Afghanistan there is an elimination of violence against women law that was passed in 2009, and it's the first law in Afghanistan to criminalize violence against women, including acid attacks. And any attacker gets a punishment of at least 10 years in jail and at the most life imprisonment. That's about Afghanistan. And let's look at Pakistan. Pakistan is yet to pass the acid throwing and burn crime bill 2012 that was drafted after Fakhra Yunus, an acid attack victim from Karachi, committed suicide. So the consequence, the bill stipulates a minimum sentence of 14 years in prison, a maximum life sentence of life imprisonment, and fines up to 1 million Pakistani rupees. So, and also activists are campaigning to include compensation to survivors, which is a very good move. And let's look at Bangladesh. The Acid Crime Prevention Act 2002, mind you friends, this is way back in 2002, and that in Bangladesh, that regulates the sales of acid across the country. And the Acid Crime Control Act 2002 imposes death penalty on the culprits. So the number of acid attacks have substantially decreased ever since the act came into being. So to talk about all of these and the recent Supreme Court directives, and how Lakshmi and a few acid attack survivors moved on, started this campaign of stopacidattacks.org. It is stopacidattacks.org. Pulled in support, met various different ministers, MPs and others to raise awareness and how they could really file this PIL in Supreme Court to bring nation's attention towards this heinous act of crime against our own women. So with us also Alok Dikshit in the show, and Alok Dikshit will the man behind this Stop Acid Attacks NGO initiative, one of the persons dealing with these women, and an incredible man who has picked up this initiative. So Alok Dikshit will also, a journalist by himself, Alok Dikshit will join us on NRI Samai after our conversation with Lakshmi ends up in the show today. So we thank Lakshmi and Alok Dikshit for joining today's show. And also once again friends, there is a petition that you all need to sign. It's for us and for our generation that these brave men and women are fighting to curb the acid sales in our country. And the petition is very simple: tinyurl.com/stop acid attacks. And Navneet Shukla from Boston will talk to Lakshmi right away. So Navneet, you can take it from here. Thank you very much. मैं नवनीत शुक्ला और मेरे साथ श्रीकांत हैं। हम लोग एनआरआई रेडियो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग आप जैसे ग्रास रूट वर्कर्स हैं जो कि देश में डिफरेंस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी वॉइस को अक्रॉस द ग्लोब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट फाइट किया, इस हेनरेस क्राइम के अगेंस्ट।
सो हमारी एनआरआई कमेटी और ऑल ओवर एनआरआई लिसनर्स आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहते हैं इसके लिए। सो थैंक यू सो मच सर। ओके। और सर एक चीज कुछ आज ऐसा हुआ था कि आज मतलब हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे थे, जो हम लोग जो एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं उसका हम थोड़ा आज हम लोगों ने सेलिब्रेशन रखा था, तो ऑलमोस्ट जितनी सर्वाइवर थी वो सब आई हुई थी। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड वी अप्रिशिएट योर योर टाइम एंड एवरीथिंग। लक्ष्मी जी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और आपने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया एंड वी टोटली अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट डिफरेंस यू विल, आपको क्या डिफरेंस लगता है आफ्टर फाइलिंग द केस और उसका केस जीत लिया और इस टाइम में और उससे पहले के टाइम में आपने कोई डिफरेंस फील किया कि सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, कि आपको लेकर के या जो भी एसिड विक्टिम्स हैं उनको लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उनके विचार में कुछ चेंज हुआ है आपके फाइट के बाद? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, एक सीढ़ी तो हम लोगों ने उठा ली है कि हम एक सीढ़ी पे चढ़ गए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मैं सरकार से एक तरीके से मैं 7 साल से इस चीज़ के लिए लड़ती हुई आ रही हूँ, ठीक है। और 7 साल पहले अगर ये डिसीजन ले लिया होता तो अगर इतने सारे अटैक्स जो हुए हैं बाद में, शायद वो काफ़ी हद तक रुक जाते। और मेरा यही मकसद था कि एसिड को बंद करवा देना, उसकी सेल बिल्कुल भी ना हो मार्केट में। और मेरा ये मानना है कि मार्केट में इतनी ब्रांडेड चीज़ें मतलब जो मिलती है, इतने ब्रांड मिलते हैं कि लोग अपने मतलब गली से एसिड बेचते हैं, निकलते हैं, जाते हैं और लोग खरीदते हैं उसे। और अगर वो 10 रुपए का एसिड खरीदते हैं अपने घर की सफाई के लिए, ठीक है, और ये चीज़ वो गलत करते हैं। मैं समाज को सबसे पहली चीज़ यही कहना चाहूँगी कि जो 10 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं और आज के टाइम में वो ब्रांड चीज़ें सिर्फ 35-40 रुपीज़ की ही आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। तो अगर आप नॉर्मल सी वो चीज़ खरीदेंगे तो आप अपने घर में काफ़ी सुरक्षा महसूस करेंगे, जो आगे जो आने वाला टाइम है, इतनी मतलब जो आपका लाखों का खर्च होगा उस खर्च से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात ये कहना चाहूँगी, जैसे कि अब घर में छोटा बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि एसिड क्या होता है। जैसे कि मैं थी, मुझे नहीं मालूम था कि एसिड होता क्या है। जब मैंने 2.5 महीने के बाद अपना चेहरा देखा तब मुझे एसिड का मतलब पता चला कि एसिड होता क्या है, क्योंकि मैंने चेहरा नहीं देखा था उस टाइम तक। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। तो लोग कहते हैं कि घर में जो एसिड आता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन कहने के लिए वो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। अगर बच्चा उठा के उसे अपने ऊपर डाल लेता है, उससे कितना नुकसान हो जाता है, उसकी आंखें चली जाती है, जितने केसेस आपने पहले देखे होंगे कुछ टाइम पहले। या कोई खुदकुशी करना चाहे तो वो एसिड पी लेता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है तो आप उस चीज़ को परचेज करिए। आप ये फालतू की चीज़ें मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें खरीदते हैं अपने ही घर का नुकसान करते हैं। और हम ही लोग हैं जो इस चीज़ को बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदलेगा आके। और इतना मेरी लाइफ में और जितनी भी हम सर्वाइवर फ्रेंड्स हैं, हमारी लाइफ में इतना बदलाव हो गया है। पढ़ाई छूट जाती है, करियर खराब हो जाता है, आंखें चली जाती है, पूरा चेहरा कभी कभी ऐसा किसी का चेहरा हो जाता है कि पूरा चेहरा एक कपड़ा जैसे प्लेन होता है, ऐसा हो जाता है। कान चले जाते हैं, नाक चले जाते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। हम मरते हैं, अगर हम बचते भी हैं तो हमारे साथ साथ जो हमारे परिवार है वो भी मरते हैं। और साथ साथ ये भी है, रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। सब लोग इतना एकदम से साथ छोड़ देना, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़का और लड़की में बैर ना करे, क्योंकि अगर आप लड़के को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और अगर वो घर से बाहर निकलता है, तो अगर वो किसी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ये बोलता है वो, ठीक है, और उसको वो लड़की मना कर देती है, तो उसका ईगो हर्ट होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपने घर से सीख के आया है वो चीज़, और बाहर निकलने के बाद वो चीज़ वो किसी
और पे कर रहा है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो रहा है कि उसने मुझे ना कैसे बोला, क्योंकि उसको अपने घर से ही ना सुनने की आदत नहीं होती। तो लड़का और लड़की में आज के टाइम में कोई बैन नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की एक ही समान है। और एक चीज और कि जब लड़के की शादी होती है तो ऐसा होता है कि लड़का एक तरीके से अपनी वाइफ को लेके अलग हो जाता है। पेरेंट्स किस हाल में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन लड़की अपने ससुराल में होती है, तो अगर उसे इतना पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स परेशान हैं, वो ये भूल जाती है कि मेरा ससुराल है, वो भाग के आ जाती है। तो यहाँ पे फर्क देखिए। समाज को कहूंगी, जब तक समाज नहीं बदलेगा तो कैसे। और कानून को भी सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज से एसिड को बिल्कुल सेल करना बंद कर देना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने एक कल जजमेंट, जो उस दिन जजमेंट करी थी 18 को, उन्होंने ये कहा कि मतलब जो सॉरी, हाँ मैं वही बता रही हूँ। मैं यही पूछने वाला था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, डू यू रियली फील कि वो जजमेंट सही है, या वो जजमेंट उतना इफेक्टिव है कि वो इस अटैक को रोक सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी प्रूफ बिफोर सेलिंग द एसिड टू एनीवन, और आपको अपने एसिड की जितनी भी आपके पास एसिड है, आपको 15 डेज में आपको आपके एरिया के SHO को दिखाना रहेगा। और उन्होंने बोला है कि जो विक्टिम्स हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले वो आई गेस 75,000 था, या बट उसको बढ़ा के उन्होंने 3 लाख कर दिया। तो डू यू रियली थिंक कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हेल्प कर पाएगा इस अटैक को रोकने के लिए? सर एक चीज ये कहना चाहूंगी, वो ये वेट कर रहे हैं जो अभी जो सर्वाइवर जो अभी जिनके साथ अभी इस साल के पहले जितने सर्वाइवर्स हैं जिनके साथ हुआ है, वो उन लोगों के लिए नहीं है। जो उन्होंने कॉम्पेंसेशन की बात करी है, ये सारी बात कही है, वो मतलब इस हम लोगों के लिए नहीं है। जो आने वाला टाइम है, जो किसी के ऊपर जब अटैक होगा, ठीक है, उसको 15 दिन के बाद 1 लाख दिए जाएंगे, 2 महीने के बाद 2 लाख दिए जाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? 60 साल से मैं लड़ती हुई आ रही हूँ और उसके बाद उन्होंने ये जजमेंट रख दी कि जो अटैक होगा, इसका मतलब कानून और सरकार कड़ी होने के वजह वो ये कह रही है कि नेक्स्ट अटैक का वो वेट कर रही है। और बल्कि जो अगर अटैक होता भी है तो वो 1 लाख जो बोला है 15 दिन में देने के लिए, वो 15 दिन के बदले वो देंगे 15 साल में, जो कि उनके घर के आगे या ऑफिस के आगे जाके खड़े रहो 4-4 5-5 घंटे अपॉइंटमेंट के लिए, जो नहीं मिलता। मैं 15 तारीख को होम मिनिस्ट्री गई थी वहाँ पे सुशील कुमार शिंदे से मिलने के लिए। 3 घंटे तक हम सारी सर्वाइवर्स धूप में सड़ती रही, और उसके बाद हम लोग जब उनसे मिलने के लिए इतना रिक्वायरमेंट कर रहे थे, किसी ने कोई ये नहीं। वो नीचे उतरे, सीधे गाड़ी में बैठ गए, वो निकले, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम कहना। हम सब ने मिलकर उनके गाड़ी को घेरा और उनके आगे जाके 25,000 लोगों जो पिटिशन तैयार की गई थी उसमें सिग्नेचर मिले। उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और जब मैं वहाँ उनको दिया, उन्होंने बोला मेरे को, जो कमिटमेंट रखी उन्होंने अपनी, कि आप पहुंचा देते, दे देते, कोई दे देता। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमसे एक बार मिल ले, हमारे अंदर का जो दर्द है वो एक बार सुन ले। सर हमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जॉब, जो हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो वो क्यों नहीं अपनी आंखें खोल रही है, क्यों अपने कान नहीं खोल रही, क्यों वो चुपचाप से बैठी है? जजमेंट भी ऐसे करते हैं कि बस मतलब उसमें कोई कुछ होता नहीं है। इतना सा जजमेंट कि सिर्फ जो हम लोगों ने डाला था केस की, हाँ उन्होंने ये कह दिया रेगुलेट करने के लिए। और आज के टाइम में भी सर अभी तक ऑर्डर गए नहीं होंगे दुकान में। आज भी आप लोग जाके दुकान में इतना बोल सकते कि हमें ऐसे चाहिए, वो दे देंगे। अगर हम उनसे ये पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि आपको ऑर्डर नहीं आया, आप ऐसे कैसे बेच सकते हो बिना लाइसेंस के, तो उनका एक कमेंट होगा कि हमारे पास ना कोई फोन आया है ना कोई ऑर्डर आया है, तो हम कैसे, क्यों? उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है, बेचने से मतलब है। तो इसलिए मैं सरकार से नाराज हूँ, कानून से नाराज हूँ इस बात को लेके कि हमारे हक में कुछ भी नहीं आया। सर डेफिनेटली लक्ष्मी जी, हम सब लोग मिल के प्रयास करेंगे कि हम लोग अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सके, ताकि वो जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं इस आवाज को, वो उस आवाज को सुन सके। सर और एक चीज कहना चाहूंगी जी प्लीज। सर, जो और भी सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, जिनकी आंखें नहीं है,
सर आपने जैसे कि कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको इसी टाइम या एक दिन के बाद कल ही हमें अल्ट्रासाउंड करवा के या कल ही हमें एक्सरे करवा के फटाफट रिपोर्ट दिखाइए, ठीक है। हमारी कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं जो आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो देख सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी है सर कि 7 साल 8 साल 10 साल उनके केसेस को हो चुके हैं सर, ठीक है। और अगर उनकी उम्मीदें हैं सर, अगर हम इतना लेट करेंगे, इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर हम थोड़ा भी लेट करेंगे, जो एक उम्मीद, जो एक रोशनी सी जाग रही है, वो रोशनी मतलब थम सी जाएगी कि ये हुआ क्या, इतना लेट मतलब उनका ट्रीटमेंट करवाना बहुत गलत होगा ना सर। डेफिनेटली लक्ष्मी जी, विल डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि इस आवाज़ को हम लोग हायर अथॉरिटी तक पहुंचा सकें, आपकी आवाज़ को, आपकी पेन को। और हम लोग डेफिनेटली इस पेन को फील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज हो और किसी भी हमारी माँ बहन के ऊपर ऐसे अटैक्स ना हो, और जो अटैक ऐसे करते हैं डेफिनेटली उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लक्ष्मी जी, लाइक आप एक मिसाल है। मैं अभी बहुत सारी रिसेंट में बहुत सारे हादसे हुए दिल्ली के अंदर, जैसे निर्भया का रेप हुआ, उसका लॉ बना, और उसके बाद आपका ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वर्डिक्ट आना। डू यू रियली फील कि कुछ सोसाइटी में चेंज हो रहा है, या सिर्फ ये सिर्फ लॉ बन रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा? हाँ जी सर, ये सिर्फ बनाए जाते हैं, वहाँ से जजमेंट हो जाती है और आगे का काम सरकार का होता है कि क्या करना है। और सरकार अपने आराम से साइड में बैठी होती है, अपने घर में जो भी हो रहा है वो देख रही है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो नहीं देख रही है। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त अगर पनिशमेंट बना दिए जाए तो क्या कभी ऐसा होगा? मतलब हम चाहते क्या है? कहते हैं कि भारत, ये सारी चीजें क्या है, ये सब दुख होता है ये बात सोच के कि पहले वोटिंग टाइम पे वो खड़े हो जाते हैं कि हम, और इतना पैसा बर्बाद करते हैं वो वोट के लिए, एक वोट के लिए। लेकिन यहाँ आज हम एक उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। इतनी दौड़ भाग, हम एक तो शरीर से अपने परेशान है और ऊपर से इतना जुर्म लड़कियों के साथ हो रहा है, तो कौन हमें इंसाफ देगा? जो हमें, जिनसे हमें इंसाफ चाहिए वो सच में अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठा है, अपने कान में रुई लगा के बैठा हुआ है, वो नहीं सुन रहा है सर। लक्ष्मी जी, आपको डेफिनेटली उनकी रुई को निकालना होगा और उनको अपनी आवाज़ सुनाना होगा। एंड बिलीव मी, हम सब आपके साथ में हैं और ये पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। तो लक्ष्मी जी, आप पूछना चाहूँगा कि किन लोगों ने आपकी हेल्प की और आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि मुझे इसके लिए फाइट करना है? और जस्ट रीडिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, तो मुझे मालूम चला कि आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब थी, भाई की तबीयत खराब थी, और आपके ऊपर भी ये अटैक हुआ। सो फ्रॉम वेयर यू गेट दिस एनर्जी कि मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करनी है, मुझे इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करनी है, मुझे सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करना है? बिकॉज what I feel is really very difficult for you initially. सर मेरा जब ये मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मेरे पापा मम्मी और मेरे जो पापा की बॉस है शिरीन जीजी भाई, ठीक है, इनका रोल बहुत अच्छा था। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि इन्होंने मेरे अंदर इतनी हिम्मत दी है, बहुत अंदर से मतलब एक दिया से जलाया कि लक्ष्मी तुम कर सकती हो, कुछ कर सकती हो। लेकिन जब मेरे केस के बाद बहुत सारे मैंने हादसे देखे सर कि ये हुआ क्या है, मैंने जब अपना चेहरा पहली बार देखा शीशे में तब इतना बड़ा दुख हुआ कि ये हुआ क्या है। मतलब एक अपने आप से क्वेश्चन हो जाता है कि तेरी ऐसी क्या गलती थी जो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है। तो उससे इतना मतलब फिर मतलब जो मेरा एक्सीडेंट हुआ 1 साल के बाद, मतलब ऐसा कुछ हुआ, हम सब बैठे हुए थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, शिरीन आंटी जो मेरे पापा की बॉस है, अपर्णा भट्ट जो मेरी लॉयर है, हम लोग सब बैठे थे और डिस्कशन हो रही थी इसी चीज़ की कि कुछ करना चाहिए। तब हम लोगों ने ये अपील वहाँ पे डाली और धीरे 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 करके हम आगे बढ़ने लगे कि हाँ कुछ करना है जब से। और उसके बाद मैं 19 मई से 2013 से ही मैं स्टॉप एसिड अटैक में जुड़ी हूँ। यहाँ आने के बाद इतना मैं मतलब इतना यहाँ पे आके इतना मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। 8 साल में मेरा बचपन, मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ खो गया सर। और जब अभी 9-10 महीने पहले मेरे पापा जी की डेथ हो गई है, उनको हार्ट अटैक आया था।
मेरे भाई के लंग्स खराब है, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरा ट्रीटमेंट 2009 में लास्ट में हुआ था, उसके बाद से 2013 हो गया, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर में। माँ है, माँ भाई को देखती है, बहुत परेशान है। इन सब चीज़ों को देख के इतना दुख होता है कि सब कुछ बदल जाता है, बिगड़ जाता है। फिर भी मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ स्टॉप एसिड अटैक में आई, इतनी सारी एक्टिव चीज़ें मुझे मिली, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिला, और इतना सब कुछ, इतना सपोर्ट मुझे स्टॉप एसिड अटैक से मिला, सारी टीम जो आज हम मिल के काम कर रहे हैं। और आज एक तरीके से उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं सर आज इतनी खुश हूँ कि मैं अपनी टीम को सल्यूट करती हूँ, अपने स्टॉप एसिड अटैक को सल्यूट करती हूँ। मेरी जो लॉयर है अपर्णा भट्ट, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि इतना मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ रहे हैं शुरू से ही। मुझे इतनी खुशी है कि आज मेरी हंसी वापस मुझे मिल गई है। डेफिनेटली सुन के काफी अच्छा लगा हमें। लक्ष्मी जी, मतलब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी आप क्या करना चाहती हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो आपने कुछ प्लान किया है इसके बाद कुछ करने के लिए, या इस एरिया में कुछ करने के लिए, ताकि हम इस एसिड अटैक को रोक सके और सुप्रीम कोर्ट से और भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सके कि हम लोग को और भी कड़ा कानून मिले, ताकि जो जिस तरीके का घिनौना अपराध जो ये करते हैं, ताकि उनको सख्त से सख्त सवाल मिल सके। और आप जैसे बोला आपने StopAcidAttack.org के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोगों को मालूम चल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ सके। सर, मैं खुद एक सर्वाइवर होके, जो मेरी और सर्वाइवर फ्रेंड्स हैं, आज मैं उनके लिए खड़ी हूँ, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी सर्वाइवर फ्रेंड्स हैं, उनकी घर की बहुत हालात ख़राब है, और टोटली हम सबके घर के हालात बहुत ख़राब है। तो हम लोगों की सबसे ज़्यादा यही उम्मीदें हैं कि हमें, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो प्रोवाइड हो, जो हमारी बहनें देख नहीं सकती हैं उनके लिए कुछ हो सके। बहुत दुख होता है कि वो हमें उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाना पड़ता है, जो इंसान पहले से देखता हुआ आ रहा हो और 8-10 सालों में वो कुछ नहीं देख रहा। आप समझ सकते हैं कि कितना घुटन होता है, कितना दर्द होता है इस चीज़ को, कि सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर भी जब तक ये जंग चलेगी हम लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमें पता है सब हमारे साथ है और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आगे होने वाले अटैक्स को रोकने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आगे बढ़ते जाना है। और रही मेरे आगे फ्यूचर की बात, मैं अपने, मतलब अभी जो मैंने अपना ये जो मेरा कैंपेन है, अभी मैंने अपने कैंपेन में ही आगे कुछ करने के लिए सोचा है कि मैं अपने कैंपेन में ही सब कुछ करूं, सबका सपोर्ट आए, कि हम लोग सारे सर्वाइवर्स की हेल्प हो सके इस चीज़ से। तो ये चीज़ मेरा ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान है कि हाँ, ये है मेरा फ्यूचर इस टाइम पे सर। ओके, हमारी आजकल की जो मूवीज बनती हैं हमारे यहाँ पे, आइदर वो हिट होती है या फ्लॉप होती है या कैसी भी मूवीज होती हैं, उसमें जो वुमेन्स का, जो औरतों का रियल कैरेक्टर है वो नहीं दिखाया जाता। वो सिर्फ दिखाया जाता है कि दे आर गुड इन डांस और ब्यूटीफुल और इस टाइप से, बट जो उनका रियल कैरेक्टर है कि स्ट्रॉन्ग, वो माँ भी हैं, बहन भी हैं और वाइफ भी हैं और घर को चलाती हैं, वो जो उनका रियल कैरेक्टर वो नहीं शो किया जाता। तो डू यू रियली थिंक कि जो मूवीज का भी जो मीडिया का रोल है या जो मूवीज का रोल है वो भी एप्रोप्रिएट नहीं है इन सब अटैक में को बढ़ावा देने के लिए? सर, कुछ टाइम पहले मेरा एक मानना है, मतलब मैंने बहुत टाइम पहले एक मूवी देखी थी, तेजाब, ठीक है। तो उस मूवी को देख के जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें एक चीज़ दिखाया गया था जो मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनकी डेथ भी हो गई है। तो उनका पार्ट ये था कि अमरीश पुरी, तेजाब मूवी की बात है, काफ़ी पुरानी पिक्चर है, तो इतनी भी पुरानी नहीं है। तो उसमें ये दिखाया कि लड़कियों को लाया जाता है सेल करने के लिए, ठीक है, बाहर से कहीं से भी लाया जाता है, और जब लड़की मना कर देती है किसी के साथ जाने के लिए तो डायरेक्टली ओपनली ये चीज़ मूवी में दिखाया हुआ है कि उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ये जो चीज़ें होती है किसी न किसी चीज़ से, मतलब करती है कि हाँ, आगे बढ़ावा देती है। हर किसी न किसी मूवी में कुछ ना कुछ गलत होता है कि वो चीज़ बढ़ावा देता है।
तो अगर उस चीज को कुछ और पार्ट से दिखाया जाए, कुछ और तरीके से दिखाया जाए तो काफी बेहतर होगा। क्योंकि लड़के देखिए सीरियल्स बनते हैं, मूवी बनते हैं, तो मोस्टली यही होता है, हमें ऐसा वेयरिंग करना है, हमें ऐसा काम करना है, काफी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है उससे, तो काफी असर पड़ता है समाज में भी। डेफिनेटली हम लोग यही जानना चाह रहे थे एग्जैक्टली, बिकॉज वी ऑल्सो फील द सेम वे कि हाँ, जो रियल वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, दे आर नॉट शोइंग दैट पार्ट, कि वो उनको वो पार्ट नहीं दिखाया जाता सोसाइटी को। इंस्टेड ऑफ दैट लाइक वुमेन्स को दिखाया जाता है कि यार दे आर ब्यूटीफुल एंड मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ यूज थिंग। सो और आपको हमारे लिसनर्स के लिए कुछ कहना है, और आपको वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर किसी को कुछ आपसे कांटेक्ट करना है या आपके साथ जुड़ना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? मैं यही मैसेज, सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो हमारा समाज है मुजरिम को बढ़ावा देता है। वो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगी। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, 4 दिन के बाद मुजरिम अरेस्ट हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद उसे बेल मिली, 1 महीने के बाद वो 1 साल तक जेल से बाहर रहा, और उसके बाद उसकी शादी भी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए, तो और फिर वो जेल गया। तो यहीं से ही आप लगा लीजिए कि यहीं से ही एक चीज नजर आती है कि समाज ने उसे आगे और गलत काम करने के लिए उसको एक क्लू दिया है कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम लोग करो जो कर सकते हो। बाहर अगर बच्चा कुछ गलत काम करके आता है, वो घर आता है और अपने माँ बाप को कहता है, तो माँ बाप कहते हैं जा चला जा, उसके घर चला जा, दादा के घर चला जा, मौसी के घर चला जा, या दिल्ली से बाहर चला जा, दोस्तों में चला जा, यहाँ से चला जा। तो ये बढ़ावा हमारा समाज दे रहा है। ठीक है, समाज को बदलना बहुत जरूरी है, और लड़का लड़की में जो भेद है वो बिल्कुल कम करें। और अगर हमसे कांटेक्ट जो भी करना चाहता है, हमारा वेबसाइट है www.stopacidattack.com। उसमें जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए, उसमें आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी है हमारे कैंपेन का नंबर है, वो हमसे आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी आप हेल्प करना चाहें उसमें सब कुछ दिया हुआ है कैंपेन का, तो आप उसको ओपन करिए और देखिए, और हम लोग आपको उसमें मिलेंगे। और जिसकी जो जो स्टोरी है, जितनी भी स्टोरी है, आपको जो भी सर्वाइवर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं, जितने सबकी स्टोरीज आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेगी www.stopacidattack.com पे। Okay, thank you Lakshmi ji, and we salute like all your determination, your hard work, and आपने जिस तरीके से, जिस करेज के साथ इन सबको फेस किया, एंड we would like let you know कि हम लोग आपके साथ हैं इस फाइट में, और प्लीज डेफिनेटली आप अपने को अकेला मत फील कीजिएगा, एंड वी आर हियर फॉर यू एंड इन योर फाइट, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। सर एक बात और कहना चाहती हूँ जी, हमारी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो देख नहीं सकती हैं, तो और वो उनकी डॉक्टरों ने कहा है कि उम्मीद है देखने की। तो अगर कोई डॉक्टर या कोई भी अगर उन सबकी मदद करना चाहे तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। एक उम्मीद जो है जगी हुई है, और हम चाहते हैं कि उनकी आंखें खुल जाए और वो दुनिया देखने लग जाए। हम नहीं चाहते कि ये उम्मीद मतलब थम सी जाए और कुछ ऐसा हो जाए। तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी ऐसी मदद हो, कोई भी डॉक्टर, अगर रेनू, अन्नू, सोनाली और भी काफ़ी सर्वाइवर्स हैं जो देख नहीं सकते, मदद करना चाहिए, तो प्लीज़ stopacidattack.com में आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमसे जुड़िए और हमें बताइए। डेफिनेटली लक्ष्मी जी, हम आपकी बात दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है कि लोग खुल के सामने आएंगे आपके हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग आपसे कांस्टेंट टच में रहेंगे, और हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे इफ़ वी गेट समथिंग, कि जो हमारे पास कोई आता है और जो वॉलंटरी लोग आप लोगों की हेल्प करना चाहता है, वी डेफिनेटली विल प्रोवाइड द पाथ stopacidattack.org and I'll ask them to contact you. Thank you very much for your timing. Thank you, sir. Thank you so much. So thank you, Navneet, and thank you, Lakshmi. And friends, we have now Alok Dikshit, a journalist and social activist. He's
He has already been on NRI Summer earlier when we did a show on Section 66A, and which is all about freedom of internet in India. He is a founding member of Save Your Voice, a movement against internet censorship in India, and Stop Acid Attacks campaign, a campaign to raise voices against acid violence. So Alokji, I know you're a journalist by yourself, so I was just wondering, you're the man behind this initiative. I know Asim is also there. I've seen the stopacidattacks.org and the people behind that effort. You have been on the helm of all this in this initiative, and first thing I wanted to thank you with all hearts. You've taken up an incredible initiative. So Alokji, just walk us through what's been going on with this, because honestly, we were all blind of such things. We don't even know that such and such initiative is happening, nor the media has taken it up, unless, until Lakshmi ji came out in the open, and then when Supreme Court picked up this issue, we don't even hear such things. So walk us through what has happened in these 7 years and how you picked up this initiative to start StopAcidAttacks.org. See, in 2006, when Lakshmi filed this PIL, immediately Supreme Court had asked for banning the acid sale in country. And then this could not happen till 2009, when again a Law Commission of India report was submitted after suggested by Supreme Court. It was demanded that there should be a provision. For banning acid, and there should be the compensation and other. Even there was a recommendation that IPC 326 should be amended, and there should be specific sections for acid attacks. But unfortunately, again, this could not happen until 2013, when Nirbhaya rape case was most talked in India, and then again they framed a policy. And then we got a rule which was for acid attack survivors. And then from now, I think if any attacks happens, attacker will not get bail. But problem is that cases goes for 10 years, 15 years long, and attackers most of the time remains on bail. So this is the worst part of this crime. Again, there is no policy from the government side, and there is no research, no initiative. Even in Supreme Court, government was not willing to do anything which was up to level. Supreme Court had asked so many times. The Supreme Court got angered. That was the problem. Government didn't do anything. In other countries like Bangladesh and Pakistan, where acid attacks were at peak at some time, then there was a political will, and and rules came in, rules were framed by Parliament, not by Supreme Court. So problem is that Supreme Court wants help these survivors, but again everything depends on government. Enforcement is government's part, and it's not happening at all. In particularly in Lakshmi's case, particularly in case of acid attacks, and regarding I think this PIL is the best example how government is not working, how government never worked, and Supreme Courts can't do anything. They can't ban acid. They know they can't give that decision. Everyone knows that Supreme Court can't ban acid, but at the same time, government is not doing anything. Right. This is the worst thing. Yes. Right. So you're saying that Pakistan and Bangladesh are much better in this particular issue, yes, as far as acid attacks are concerned, right? Yes. At least they have political will. Because I think 4 months back, when a bill came in the Parliament for on acid attacks, where it was mentioned that acid attackers will get life imprisonment minimum. They will get at least life imprisonment. So this bill was voted out, which again reflects the nature of the society, where all women issues are most of the time get vote out. Even that women reservation bill is also pending. So that's the problem. We reflect the Parliament is only the reflection of our society. So it's a bad reflection, and it clearly means that our society is still men dominating.
Still, we don't understand women, we don't understand their pain, and we attack them, because these attacks are most of the time are against women. So this is the condition. We should not blame Parliament only. We should not blame government, because this is the reflection. This is the thing. This is not only one thing that acid attacks are being ignored. Every women right issue has been ignored in India. That's the problem. Very true. No, the fundamental reality is, let's talk about women issues. Take it piece by piece. When there is a debate going on that dowry harassment section 495A is being misused, those are certain things wherein there could be some cases to the left and there could be cases to the right. But acid attack is something which is clearly visible. The heinousity of this crime is right in front of their eyes, and it's baffling to imagine that the Parliament has voted out such and such bill where the punishment should be severe, right? So yes, because we feel most of the time we feel that rape is very heinous. Again, why why rape is very heinous? Because it's a social stigma. Right. So that's the problem. Society decides what is that, and society is very, very immature. That's the main problem. So people don't know what the pain behind the acid attack is. That's the only problem. That's why our main motive is to create more awareness on it. Now at least you can hear these voices. Lakshmi was I think. We tried finding her. We tried so much, we couldn't find her from past few years. But when like now she is speaking. Now when I started campaign, when she contacted us, she started speaking. So that's the thing. Now she's telling the story. She's telling how heinous the crime is. So now I think we are getting point of views. And after a few months, I think maybe a few years, you'll get I think society will get to know what kind of crime it is, and then I think the Parliament will pass the bill. That's the reality. That we know, but we are very, very sad that we most of the time ignore all these issues. Right, and in India. Alok bhai, the point is that we have been tracking you and your efforts. Not the way that the mainstream media would write about your stories. But we sincerely really request you to put forth all these stories. If you find any of such things that you're covering, you've been a journalist by yourself. So if you find such stories, please do write us to nrisamay@gmail.com. Sure. And I appreciate your work, because last time also you interviewed us, and when mainstream media was not interviewing us, we were on hunger strike against an act which is totally ridiculous. And then you supported us, so that's the thing. We believe that. I think we have we have other media also. We have other mediums. We have our voices. I could start this campaign because we had other mediums. Otherwise, mainstream medium is every time low. It never believes you. So thank you for raising our voices. Absolutely. There, and I'll request everyone to support these girls. And then I think by that way, I think you can encourage them, and they can they can talk in media, they can tell public that what kind of crime they are facing. Yes. So I think your support can motivate these girls. Absolutely, Alok bhai. Whatever little we could do, we are doing it. We'll also add Stop Acid Attacks Facebook page to our likes as well. And the second thing is, we have created tinyurl.com/Stop Acid Attacks. So anybody listeners, if you're listening to this show, please do go to, it's a simple URL, tinyurl.com/Stop Acid Attacks. Please do sign the petition. That's the least each one of us can do for these brave hearts. And also, Lakshmi is not fighting for anyone else. Lakshmi is fighting for us and our next generation. And Alok bhai, even before we conclude this show, I just wanted to ask you one last question. The curious case of how this case came to the Parliament and then it was voted out. What was that was there in that bill that was voted out, Alok bhai? Can you elaborate on that a little bit? Yeah, it was life imprisonment for the attackers who attacked girls with this motive,
to disfigure them, to give them pain. And if motives clear, if it is clear, they should get life imprisonment. I think, and that's not a thing. We should not be there, because if rape is so heinous, I think then acid attack is more heinous than that, because it again includes so much medical trauma. Yes, people. Yes. Yes, and I mean most of the time, every kind of trauma means even psychological trauma. Right. So we should, I think, we should consider it, and we should think about it again, that pouring acid on someone, it means like you're not taking away someone's life, you're taking away someone's happiness, someone's right to live a better life. So it should not be there in the society. And one more thing, I think you're out of time, I don't know, but one more thing, what most of the time we feel that people who do such crimes are most of the time acceptable in the society. They do marriages. Right. Most of the attackers are married. They get married after attacks. How I don't know how it happens. How who marries them, or what kind of family. I don't know. I'll say, think about it. I think governments are not responsible for that. Only we are, our society is responsible. We must start our initiative from our family itself. Right. We must start respecting women. Start respecting. Yes. Boys should be trained in that way. And then, unfortunately, yes. The government's response is so bad. Just like creating stopacidattacks.org, you should also create acidattackers.org and then post these photos and shame these guys who are getting married. I don't know where it's going to end. The buck stops somewhere. I don't know where it stops right now. But the point is that at least there are few brave hearts like you. And then we really appreciate your efforts, Alok Bhai. And then we thank you for making it to the show as well again. Thank you. Thank you very much, Alok Bhai. Thanks again. Friends, if you liked today's show, please go to youtube.com/NRI Samay and click on the subscribe button. You will get notified every time we publish a new show. And you can also like us on our social media sites like Facebook, Twitter, and Google+.